Hello, dear students. As you all know, we have already started this chapter, Sectors of Indian Economy, class 10th, second chapter, and we are into the second topic. I have just taken out this piece of explanation, which is talking about the GDP, gross domestic product. So yesterday we had a lot of discussion, but I am again revising it. In the last class we had discussion, but I felt this is one of the very important parts, so I just wanted to revise it. Value of final goods and services. So what actually is GDP? It's value of final goods and services produced in each sector during a particular year. All the goods and services that have been provided by a particular sector, it's primary, secondary and tertiary, all the three sectors we calculate together, and a total production of the sector for that year. Okay, and the sum of the production of all these three sectors. Got it? So primary plus secondary plus tertiary, the sum of all these three sectors gives us the GDP. Got it? Gross domestic product. Very simple, children. You know that, okay? What happens is, sum of the production in the three sectors gives what is called as GDP. So it's P plus S plus T. When you write the explanation of GDP, gross domestic product, you can mention this formula. ऐसे ही दे सकते हो, just write P plus S plus T. Yeah, मतलब क्या ऐसा लगेगा ना, it will be the person who is checking your copy or who is seeing your answer will understand that you have understood the concept very clearly, and you have mentioned here primary plus secondary plus tertiary. So P plus S plus T. So the value of it is the value of the final goods and services produced within a country during a year. अभी क्या है children, अभी इसको भी समझो. Please try and understand that the value of all final goods and services produced within a country. Okay, it is P plus S plus T for 1 year. साल भर के लिए कितना है? Then only we calculate the GDP. Okay, and who takes the task of calculating the GDP? Central government does it. किससे मदद लेते हैं? From whom did they take the help? Various government departments. All the Indian states and union territories help the central government because it is a mammoth task. I told you yesterday also that it is a very big task. Just one or two departments cannot take up this mammoth task, big task. So this was there. So methods of farming changed. As the methods of farming changed, lot of activities also kept on changing. Got it? We were doing it yesterday. I mean in the last video. So history, because what happens is, देखो, this is social sciences. I have already told you, but again I would like to tell you that it is social sciences. And we have 4 subjects involved in social sciences. You are studying history, you are studying political science, you are studying economics, and you are studying geography. Now children, try to understand, this is an economics chapter. We are talking about primary, secondary and tertiary. So what is the use of history in this? क्या ज़रूरत है history की? Why? Why are we including history in this? Because until and unless you understand the background, क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, कब हो रहा था,
कहाँ हो रहा था, all these things, all these questions that are attached to anything, any concept, you have to mention all that. Okay, now what happened, gradually and slowly changes started happening. मतलब initially when the economy has started, it was all based on primary. मतलब सबसे पहली जो economy हमारी base थी वो primary थी. Here I would like to use this word ancient most. सबसे पहला एंशियंट, सबसे पहला जो इकोनॉमिक एक्टिविटी था. इसके बाद क्या हुआ, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपैंडिंग. नाउ जो लोग अभी फार्म्स पे काम कर रहे थे, द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी नाउ बिगैन टू गो टू सेकेंडरी. नाउ यू कैन शिफ्ट सी द शिफ्ट दैट इज हैपनिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी. लार्ज नंबर्स फार्म्स पे काम कर रहे थे, बट क्या है, यू नीड टू अर्न मोर मनी. वेयर एवर यू फाइंड द स्कोप ऑफ अर्निंग मोर मनी, you immediately, because who doesn't need money? Everybody in the country needs money, so it needs to be taken care of, that how to earn more and more, how to get your income increased. अच्छा, एक चीज़ और है, some of them went on their own, कुछ तो अपनी मर्जी से गए, now began working, but some were forced to do so. कुछ लोगों को ज़बरदस्ती. Why? Yes, of course, children, this is a big question, that why were they asked to go and work in the factories? Factories were opening, the scope of expanding the business, people who were investing the money, people who were opening the factories, वो खुद जाके तो काम नहीं करेंगे ना. They are not going to work on their own. They wanted some people to work in these places. For that purpose, some of the farmers who were very much involved in farming business, they were forced and they were asked to work in the factories. Now people began to use many more goods. Initially there was less of consumption. Try to understand, consumption means पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ों में काम हो जाता था, but now what happened, consumption increased. Consumption you understand ना, हाँ, जो इनटेक होता है, हम जो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, साबुन यूज़ कर रहे हैं, पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वी आर कंज्यूमिंग दीज थिंग्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सिंपल. कंजम्पशन, वॉट एवर वी आर कंज्यूमिंग, हम जो चीज़ें इनटेक कर रहे हैं, दैट इज वॉट इज कंजम्पशन. सेकेंडरी सेक्टर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. ग्रेजुअली एंड स्लोली वॉट हैपेंड कि सेकेंडरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ता चला गया. हैंस ओवर टाइम अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस. शिफ्ट, क्या चीज़ का शिफ्ट था? फ्रॉम पी टू एस. प्राइमरी से सेकेंडरी में ये शिफ्ट हुआ. तो अभी समझो दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स हैड चेंज्ड. इनिशियली इट वाज ओनली पी पी पी, प्राइमरी ही खाली था, लेकिन अभी क्या हो गया, यहाँ से आप दो ये हटा दो, इसके बाद दो स्टिक हम मारते हैं सेकेंडरी पे. अभी 100 years में क्या हुआ है, पास्ट 100 years देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट. प्राइमरी से हम सेकेंडरी में गए, एंड स्पेशली इन द डेवलप्ड कंट्रीज व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ वास्ट शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शियरी. सर्विस सेक्टर, जो the people who are serving, the people who are working, it had become the most important. Believe me children, T has become the most important, tertiary has become the most important. जितने भी लोग काम कर रहे हैं, working people are employed in the service sector. So डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, हम डेवलपिंग में इसलिए हैं. वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैड आस्क्ड क्वेश्चन एंड इट वाज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि वाई इतना ज़्यादा हमारे यहाँ डेवलपमेंट है, बट वाई आर वी स्टिल
called as developing. Why are we not included in the developed countries, children? Because the way we have shifted from primary to secondary to tertiary, it was very fast. So tertiary sector में जाने के लिए, now please try to understand the shift that is happening. tertiary में आपको shift करने के लिए, to go to tertiary, one thing that is extremely important is this. Yes children, education. आप इस सेक्टर को तब तक टच नहीं कर सकते हो till the time you are properly educated, my dear children. So education is the most important one in all the sectors. हाँ, प्राइमरी में चलो छोड़ देते हैं, लेकिन सेकेंडरी में भी थोड़ा बहुत जो है, अभी तो सेकेंडरी में भी द शिफ्ट इज हैपनिंग वेयर एजुकेटेड पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व इनटू द सेकेंडरी सेक्टर एज वेल, माय डियर चिल्ड्रन. So the total production and employment in the three sectors in India. So how much, what is the total production and employment? तो अभी जब हम देखते हैं in the last few years there have been changes. किस तरह के? Similar to the pattern observed for developed countries. How these changes had happened? ये देखो कि we are talking, when we are talking about the three sectors over the years, we are talking about the changing pattern, shift to the tertiary sector. How this shift has happened to the tertiary sector, अभी next section में हम देखेंगे. Till then, now children, these questions are there, we have to solve these questions. Yeah, of course I'll be discussing these questions with you right now. What does the history of developed countries indicate about the shift that have taken place between sectors? History, just now that we were talking about, कि the shift that had happened from primary to secondary to primary to secondary to tertiary. तो ये जो history है of developed countries, what does it indicate? यहाँ पे you have to mention that from primary people have shifted to secondary because new factories have started. आपको यहाँ mention करना पड़ेगा. The factories that have started had employed many people. Some people have joined the factories willingly. कुछ लोग मतलब अपने मन से गए. Other people were forced to join these factories. Got it, children? And from secondary to we are shifting to tertiary. So secondary to tertiary, I have already explained that tertiary sector, which is also called as P, I'm sorry children, when we are talking about P plus S plus P, I mean, so P to S to T. तो this shift has happened where T में क्या है? You need education, most important. Got it? So वहाँ पे we are lacking. हो सकता है हम थोड़ा सा वहाँ पे पीछे हो गए हों, इसीलिए tertiary sector में we are not finding appropriate involvement of the people. Now just see, one nice activity is given here. Correct and arrange the important aspects for calculating GDP from this jumble. ये jumble है. पहले कौन सा आएगा? मतलब which is the first statement, which is the second statement and which is the third statement. Got it? So you have to arrange it. शिफ्ट इज देयर ना, आपको बताना है प्राइमरी पहले कौन सा होगा, फिर विच इज़ द सेकेंडरी एंड विच इज़ द टर्शियरी. अभी इसको स्टेटमेंट को देखो. टू काउंट गुड्स एंड सर्विसेज वी ऐड द नंबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड.
अभी ये क्या है, सबसे पहले ये होगा कि सबसे बाद में होगा? आर वी डूइंग इट इन द बिगिनिंग और एट द लास्ट? वी काउंट ऑल दोज दैट वी आर प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट 5 years. Since we shouldn't leave out anything, we add up all these goods and services. Got it? तो पहला काम तो हम यही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग 5 years आ गया ना, 5 years वाला चीज तो सबसे लास्ट में आएगा. वी शुड एनीथिंग, वी एड अप ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज. सारे गुड्स एंड सर्विसेज को हम एड अप कर लेते हैं. We add up all the goods and services that we shouldn't leave out anything. We add up all these goods and services. ठीक है, तो फर्स्ट ये हो जाएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट वुड बी दिस, सेकेंड स्टेटमेंट वुड बी दिस, एंड थर्ड ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ 5 years की बात आ गई है. गॉट इट? तो दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले कौन सा स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट. डिस्कस विद योर टीचर. मेरे साथ ही डिस्कस करोगे बेटा. हाउ यू कुड कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ ए गुड और सर्विस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज. ओके, सो अभी हमने क्या कौन सा एग्जाम्पल दिया था? इन द प्रीवियस पैराग्राफ वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसिंग द बिस्किट. गॉट इट? यहाँ पे वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं दिस. नहीं, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग. शर्ट. अगर एक शर्ट बन रहा है तो हाउ डू वी स्टार्ट? वी स्टार्ट फ्रॉम कॉटन. मैंने पहले भी ये एग्जाम्पल लिया हुआ है. देन वी टेक द यार्न, देन वी टेक द स्पिनिंग, एंड देन वी मेक द शर्ट. स्पिनिंग के बाद भी यहाँ पे 1-2 प्रोसेस और आएगा. तो वैल्यू ऑफ गुड और सर्विस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज. यहाँ पे हमने कितना यूज़ किया है? हाउ मच मनी इज इन्वॉल्व हियर, हाउ मच मनी इज इन्वॉल्व हियर, एंड देन हाउ डू वी मेक अ शर्ट. गॉट इट? तो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, तो कॉटन इज ग्रोन. सो सपोज कॉटन इज सोल्ड टू द फैक्ट्री जहाँ पे धागे बन रहे हैं, वहाँ पे कॉटन की ज़रूरत है. धागे बनाने के लिए व्हेन टू मेक द यार्न कॉटन इज नीडेड. सो कॉटन इज सोल्ड एज एट 5 rupees पर kg. लेकिन यहाँ पे kg नहीं होता इन कॉटन ना, देयर इज नो kg. कॉटन में क्या होता है? इट इज kg में तो हम नहीं लेंगे इसको बंडल्स में लेंगे. Then you have the yarn. Suppose one bundle is 100 rupees. ठीक है, फिर फैक्ट्री ने यार्न बनाया. यार्न मीन्स धागा बनाया. तो वन यार्न का तो बेल होता है, BALE, बेल. ओके, दिस बेल इज देयर. Now try to understand that the bale that is there, this bale would be further used. इस बेल को समझ लो, this bale is again of 100 rupees. एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, ठीक है. तो ये यार्न को फिर कौन लेके जाएगा? The people who will be making it in the piece of cloth. स्पिनिंग के लिए जाएगा ये. बुन के क्लोथ बनेगा ना इसका, तो स्पिनिंग के लिए जाएगा. तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट विल कम इनटू मीटर. 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 10 मीटर. तो वो व्हेन यू गो टू अ क्लोथ शॉप, कभी किसी कपड़े उपड़े की दुकान पे जाओगे ना बेटे, यू विल सी वो गोल गोल जैसा पूरा कपड़ा उसमें रोल किया होता है. देखा है जब शर्ट बनने के लिए देते हैं, व्हेन यू गिव शर्ट फॉर यू टेक क्लोथ ना, 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, 5 मीटर, तो यू विल फाइंड अ वेरी, एक डंडा होता है उसमें कपड़ा रोल किया हुआ होता है.
these people buy it from the wholesalers, and wholesalers get it directly from the from this spinning factories. हर तरीके का ना, हर डिज़ाइन का कपड़ा बन रहा है. डिज़ाइनर्स आर देयर, कलर पीपल आर देयर हु विल गिव यू कलर मिक्सिंग की ये वाइट के साथ ये ब्लू बहुत अच्छा जाएगा, इसके साथ हम ग्रे कलर के साथ वी कैन गिव द ब्लैक का शेड, दिस काइंड ऑफ थिंग. सो दे गो एंड बाय इट. और उसके बाद यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, यू गो इट टू द गिव इट टू द. इसके बाद रोल किसका आता है? टेलर. Tailor or factory where it is manufactured, shirt manufacturing is happening. Okay, now what happened? Shirt manufacturing is happening, तो वहाँ पे 100 रुपीज़ का भी हिसाब उसमें लगेगा ना. कॉटन का मनी जुड़ेगा, yarn का मनी जुड़ेगा. ठीक है, we have to add it, we can't leave it, because that is the money involved in making the shirt. इसके बाद फिर 100 रुपीज़ था वो द पर्सन जहाँ पे कि द गारमेंट दिस इज मैन्युफैक्चर्ड, स्पिनिंग इज हैपनिंग, कपड़ा बन रहा है, कपड़े की थान बन रही है, एंड देन इट विल गो टू द प्लेस फैक्ट्री वेयर पीपल आर मेकिंग द शर्ट्स. स्यूइंग इज हैपनिंग, सिलाई का काम हो रहा है. अच्छा, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट शर्ट्स आर मेड. आप भी शर्ट पहन रहे हो, एंड देन यू कैन सी द चाइल्ड हु इज स्टडिंग इन क्लास 2, दैट चाइल्ड इज ऑल्सो वियरिंग अ शर्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ऑल साइज शर्ट्स विल बी मेड. तो अकॉर्डिंगली द मनी विल बी इन्वॉल्व. आपको जो शर्ट आप खरीद रहे हो, द शर्ट दैट यू आर परचेजिंग टू वियर इन द स्कूल, it costs around 500. Shirt is costing $500. So when shirt is costing 500, try to understand, इसमें हमने सारे involved, all the cost of making this shirt is involved. एंड आप ये जो शर्ट यूज़ कर रहे हो, दैट यू आर वेयरिंग इट डेली, तो आपको डेली ये शर्ट चेंज करना है. योर शर्ट्स वुड बी स्पॉइल्ड एंड इट शुड बी वॉश्ड ऑन अ डेली बेसिस, एंड देन यू अगेन वेयर इट द नेक्स्ट डे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर चिल्ड्रन? तो दिस वे द एंड प्रोडक्ट दैट इज देयर इज इन्वॉल्विंग द प्राइस. शर्ट कॉस्ट्स अभी आई डोंट थिंक सो 500 रुपये का होता होगा, बिकॉज डेली वेयर वाले जो होते हैं ना कुछ, उसका कॉस्ट थोड़ा कम होता है. आपको 350-400 रुपये का भी शर्ट्स मिलता होगा. तो दिस इन्वॉल्व्स द सेकेंडरी प्लस टर्शरी. आई एम सो सॉरी चिल्ड्रन. व्हाट हैपन्स हियर इज कि यहाँ पे हम एक चीज़ तो रह गया, दैट इज ट्रांसपोर्ट. वो तो हमने इंक्लूड ही नहीं किया, है कि नहीं? हर जगह कॉटन को मिल में लाया गया धागा बनाने के लिए, वहाँ ट्रांसपोर्ट लगा. धागे को वापस से इट इज़ गोइंग टू द फैक्ट्री वेयर द क्लॉथ इज मेड, स्पिनिंग इज हैपनिंग ना, बुनाई हो रही है. और उसके बाद वहाँ से द पीपल हु हैव गॉन एंड आर परचेजिंग फ्रॉम द फैक्ट्री डायरेक्टली द क्लॉथ दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, वहाँ का ट्रांसपोर्ट. तो ये ट्रांसपोर्टिंग का कॉस्ट रह गया. वन मोर थिंग इज देयर, पैकेटिंग. गॉट इट? पैकेटिंग हुआ, उसका भी तो अब आपको शर्ट ऐसे तो मिल नहीं रहा है. आप देखोगे इट इज़ इधर इन अ बॉक्स, एक छोटा सा डब्बा होगा, उसके अंदर होगा, या फिर प्लास्टिक. पॉलीथीन तो अभी हटा देना चाहिए, एंड वी आर रिमूविंग इट ग्रेजुअली एंड स्लोली. अ टाइम विल कम व्हेन द पॉलीथीन्स वुड बी रिमूव्ड. द बिग कंपनीज एंड बिग फैक्ट्रीज आर देयर विच आर डूइंग अवे फ्रॉम द प्लास्टिक. तो आपको आने वाले दिनों में शर्ट्स जो मिलेंगे वो कपड़े के बैग में ही मिलेंगे. बिलीव मी चिल्ड्रन, येस द टाइम्स आर कमिंग नाउ जिसमें कि ये चीज़ होगी. ओके, तो पैकेटिंग हो गया. उसके बाद
suppose the shirt that you are buying from the market, जिस भी दुकान से आप अपने यूनिफॉर्म का शर्ट खरीद रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट हैज़ कम टू द शॉप, कहाँ से वो शुरू हुआ और कहाँ से वो शॉप तक आया. तो हाउ यू कुड कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ ए गुड और सर्विस by using the method of value added at each stage. Got it? So I just gave you an overview of this calculation of the shirt that you are wearing and coming to the school. How it has been done. Got it, children? Rest when we meet, इसको जब हम करेंगे तो आप इसको देखोगे. अभी देखो. Now we come to the calculative part. Please try to understand these calculations. These are very important. The calculations that are involved, where you understand that how in India, what is the contribution of the primary, secondary and the tertiary sectors. ये graph दिया हुआ है यहाँ पे children. Please try to understand and see the graph. What is it showing? Graph is showing the production of goods and services in the three sectors. For 2 years you can see 1973, 74 and 2013-14. पूरा नहीं दिया हुआ है ना, मतलब it is showing a span of 20 years. Not 20 years, I am sorry children. 73 50 years span है. मतलब किस तरह से how the sectors have changed you will see in these graphs. You can see how the total production have grown over the 40 years. 40 years का यहाँ पे calculation है. हम डेवलप कर रहे हैं. चिल्ड्रन ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहली चीज़ जो हमको समझना है दैट वी आर कंटिन्यूअसली डेवलपिंग. ब्लू, रेड एंड ग्रीन. ठीक है, कलर समझो पहले तो. ये देख लो, ब्लू इज प्राइमरी, रेड इज सेकेंडरी एंड ग्रीन इज टर्शियरी. ऑल द सेक्टर्स हैव इंक्रीज्ड. ओके, आपको ग्राफ बनाना आता ही होगा. मैथ्स में यू माइट हैव डन इट. सो यू कैन सी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स. माय डियर चिल्ड्रन, वेरी क्लियरली इट इज मेंशन्ड हियर हाउ इट हैज बीन ग्रोइंग. आप यहाँ पे देख लो, जस्ट लुक एट दिस ग्राफ. 73, 74 में 500,000 करोड़ का ही बिजनेस था. हाँ, तीनों को मिला के. एंड 13-14 में हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? 5 से वी हैव रीच्ड 55,000 करोड़. 5500, 5 से 55 पे आ गए हैं. तो कितना हो गया? 11 टाइम्स. 11 गुना बढ़ गया ना, क्योंकि अगर 10 गुना बड़ा होता, अगर इफ इट वुड हैव बीन 10 टाइम्स तो इट वुड हैव बीन 50 करोड़. यहाँ पे आता ग्राफ, लेकिन यहाँ से भी ग्राफ ऊपर आया हुआ है ना. इट हैज़ कम टिल हियर. इन फैक्ट इट इज़ मोर देन 55,000 करोड़. सो यू कैन सी हाउ द शिफ्ट हैज़ हैपेंड. ओके, उसके बाद ये वाला ग्राफ देख के वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. गॉट इट चिल्ड्रन? Which was the largest producing sector in 1973-74? आप आराम से देख सकते हो. You can see this here. ये आप देख रहे हो. Of course it was primary. Largest producing sector was primary. Which is the largest producing sector in 2013-14? बेटा आपको ग्राफ देख के समझ में आ ही रहा होगा. Yes, of course my dear children. Tertiary. Got it? You have to do this. ये आपको करना है. Can you say which sector has grown the most over 40 years? में सबसे ज्यादा ग्रोथ किस सेक्टर का हुआ है? You know it very well of course children. Tertiary. ये देखो यहाँ पे tertiary की क्या हालत है.
73-74 में. And look at the condition of the tertiary sector here. ये आप देख लो यहाँ पे tertiary sector, isn't it? Last question क्या है? What was the GDP of India in 2013-14? ठीक है, GDP कैलकुलेट कर लीजिए. प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी ओवर द ईयर 2013-14, इन तीनों को आपको कैलकुलेट करना है. तो कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी इट इज़ गिवन माय डियर चिल्ड्रन. ये देखो यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शियरी है, और तीनों को मिला के ये आंसर यहाँ पे ये होगा 5500,000 करोड़, तीनों सेक्टर को मिला के. गॉट इट? दैट इज हाउ वी डू द कैलकुलेशंस. तो इतना अभी हम लोगों ने, वी हैव डन अ लॉट. आज हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर. ओके चिल्ड्रन, टिल देन कीप रिवाइजिंग, and in case of any doubts you can get it cleared from me. Thank you children and all the best.